જૂના જમાનામાં સાહેબ નાલંદામાં આવું જ હતું. હા, નાલંદા રસોડું બધું રસોડું બધા મોટું બધું અભ્યાસખંડ જુદા ને બધું એ ત્યાં રાજગૃહ આગળ છે ને ખોદેલું બતાવેલું છે ને જુઓ. આ તક્ષશિલા જે હતું તે પાકિસ્તાનમાં ગયેલું છે. તે અફઘાનિસ્તાનની નજીક હતું કે કંધારમાં હતું? અત્યારે અફઘાનમાં છે કંધાર કે પાકિસ્તાનમાં છે? હા, કંધાર આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અફઘાનિસ્તાન, એટલે બોર્ડર ઉપર છે. એટલે આપણે બધો પ્રભાવ તો બહુ જબરો ને. આજે અફઘાન હિન્દુઓ એટલા સ્ટ્રોંગ, કેટલા વખતના એ સનાતન, એટલે કઈ ગયા જરાબેન તે ત્યાં જર્મનીમાં આખા ફેમિલી સેટલ થયેલા છે. તો આ વખતે એ જ્ઞાન માગી રહ્યા છે, તો જ્ઞાન મૂકવાનું છે ત્યાં અફઘાન હિન્દુ આગળ. ડૉક્ટર ગોસ્વામી અને બીજા યંગ ડૉક્ટરો PhD ને બધા ઘણા છે. બધા એ લોકોએ ભાવ કરીને કહેલું છે કે મંદિરમાં જ બધાને. તે બહેનો આવી હતી, ભાઈઓ બધા એકલા એક રસપૂર્વક જે 2-3 કલાક ચાલેલું બધું બહુ આનંદથી. શું તે સનાતન ધર્મ પર ચાલ્યું હતું નહીં સાના પર? એવું જ હતું ને કંઈક સનાતન ધર્મ અને સેવા પર હતું. ના, હું આ જર્મનીની વાત કરું છું. સેવામાં હતું. હા, એ બધું જ હતું. આ બધું ભેગું એ આખું તમે સાંભળી લીધું? હા, એમ પણ બહુ પ્રેમથી સાંભળ્યું એ લોકોએ. પૂજારી હતા, એમને સાંભળ્યું. સાઉથ ઇન્ડિયાના પૂજારી હતા, એ ત્યાં મૂક્યા છે એમને. અને જૈન સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ બેઠા હતા, એ ખુશ થઈ ગયેલા નહીં? બનાવી છે ખરી, પણ ત્યાં આવું છે. અફઘાન હિન્દુ તો તક્ષશિલા ત્યાં છે. એ લોકો બધા જાણતા તો નહીં જ હોય ને તક્ષશિલાનું. અત્યારે એ લોકો પાસે કશું નહીં હોય ને કે આવું હતું અહીંયા. તક્ષશિલા દાદા પાકિસ્તાનમાં છે. હા, એ તો અત્યારે જ આવી ગયું. એટલે હા, પાકિસ્તાનમાં છે. આમ તો પાકિસ્તાનમાં વાંચ્યું હતું, કંધાર નજીક હતું કંઈક. હા, એટલે એ બધું બોર્ડર જેવું છે. બોર્ડર જેવું જ છે. કંધાર. અને આપણે મામા સલાહકાર પણ ત્યાંના સલાહકાર મામા એ પણ ત્યાંના. એમને સલાહ એ ત્યાંના ગંધાર દેશના ને એ ત્યાંના ગંધારી ત્યાંના ને ગંધારી પણ જેવા તેવા નહીં. હા, એ તો રોયલ બધું બ્લડ ખરું ને, રોયલ બ્લડ બધું સાહેબ ખરું છે બધું નહીં? આ બધો રેકોર્ડેડ હિસ્ટ્રી બધો બરોબરનો રેકોર્ડેડ હિસ્ટ્રી દાદા. અને આજે હડપ્પન સિવિલાઇઝેશનના અવશેષો મળે છે, લોથલમાં મળે છે. એટલે આજે લાખો વર્ષ પુરાની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની વાત કરે છે. હજુ એક જ લેયર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેવા કેટલાય લેયર હશે. અને એમાં જે અવશેષો મળે છે એમાં ખાસ કરીને હડપ્પન કે લોથલના એમાં ઋષભદેવ દાદાની મૂર્તિઓ, એવી જાતના ટોયસ ને બધું. એટલે આજે આ બધું. અને મેક્સિકોમાં દાદા હિન્દુ સંસ્કૃતિના કલ્ચરો અવશેષો રેલિક્સ બહુ મળી આવેલા. એ તો અમેરિકામાં કહે છે કે નહીં? અમુક જગ્યાએ પણ એ નથી એ અવસર. પણ એમાં તો શું છે આ બધું? પણ આ બધું શું છે આમાં?
આમ જોઈએ તો રેકોર્ડેડ હિસ્ટ્રી તો નથી, પરંતુ જે આપણા સર્વજ્ઞોની વાણી અને એમનું વર્ણન એ હિસાબે બધું છે, અને યુગ અને યુગોનું યુગાંતર થાય ને આને બધી પરિસ્થિતિઓ, આ 63 સલાહકાર પુરુષોનું મોટું ઉલ્લેખ છે સર્વજ્ઞ પુરુષોનો. અને એમાં એટલું બધું સાયન્ટિફિક છે કે એ વેદાંતમાં પાકો માનતો હોય એના માટે પણ એ જો તટસ્થ હોય તો એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે જરાય વાંધો આવે એવું નથી સાહેબ. બોલો, તટસ્થ હોય તો એને વાત સમજવી હોય તો. અને જૈનો वाला ने એવું લાગે कि हमारू છે, जैन पक्ष वाले हैं उनको लगे हमेरा है, और वेदांत वाले को हो किसी भी कितना भी प्रखर हो फिर भी उन्हें लगे कि भाई ये साइंटिफिक है. 63 सलाह का पुरुष, 63 श्रेष्ठ बर्थ्स, जिसको अवतार बोलते हैं ना, बर्थ्स 63. अवतार शब्द तो ये पीछे से लगा दिया है, लेकिन 63 बेस्ट फॉर्म्स, ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी, सम टोटल ऑफ देम, द बेस्ट molecular structures resulting into 63 best forms to get born. Do you understand? You know them? You want to know? Sure or no? Certain? You want to know from top to bottom or bottom to top? Tell me. क्योंकि bottom top relation is pyramidal. Tell me now. Actually, this was the question in my mind I wanted to ask, and I want to know how you came to know that. Actually, let me say what the question is. I want to know the relationship of. See, previously my belief was I had faith in a God, and I had surrendered to God or whatever. Whenever I prayed to a God. Now, when I offer prayers to Dada or ask for strength, now I picture the Shuddhatma in me. Okay? I am not able to visualize the face of Dada for that prayer. And one reason I think is that there is a reluctance on my part to accept Jnani Purush as being superior to the God I believed in. Believe in. So I want to know the relative position of Jnani Purush with respect to the Devta and the whole structure. Okay. Let. In this it is there. That is why I told you from bottom to top or top to bottom. Right? We'll talk from top and come to bottom. So both ways you'll easily understand. So in this 63 based forms, in cyclical time divisions, you see, time, you know, time cycle or no, time, काल चक्र बोलते हैं ना, तो काल चक्र ऐसा है, वो सारा काल चक्र और रिलेटिव व्यू पॉइंट से है. डू यू फॉलो और नो? सो रिलेटिव पॉइंट से जो काल चक्र है, वो काल चक्र के हिसाब से और समझ से हम समझे काल के हिसाब से, तो ऐसा रिलेटिव काल का वो काल चक्र के हिसाब से समझेंगे. और पीछे वो जो 63 बेस्ट फॉर्म है, उसका टॉप फॉर्म है, वहाँ टॉप फॉर्म इस अर्थ में है कि वो टॉप फॉर्म की स्टेट में सारा काल चक्र, रिलेटिव काल चक्र सभी समाविष्ट उन्हीं में हो गया, और वो सारा पूरा हो गया उनका. डू फॉलो? अंडरस्टैंड? जहाँ तक ये नहीं बन पाता, वहाँ तक वो काल चक्र की जो स्थिति है, वो काल चक्र की स्थिति में
जो घूमते रहते हैं कर्म के वश, वो चलता ही रहता है, नो बिगिनिंग नो एंड. बट along the path and as per punya and development, जो धर्म तरफ जाने लगते हैं, जैसे भारत में कि पुनर्जन्म है और ये चक्रावा कहाँ तक, उसमें से कुछ छुटकारा पाना है, तो जन्म मरण का चक्रावा समझते हैं, वो सब ऐसा ही है. तो वहाँ भारत में ये परिस्थिति बड़ी अच्छी बन रहती है पुनर्जन्म की, कि ऐसा चक्रावा में जो ऐसी बिलीफ और ये परिस्थिति न आवे, ऐसी वो जहाँ जब आने की लगती है तब वहाँ जन्म पाते हैं. तो भारत का यहाँ महत्व आया. भारत, you follow? So word Bharat is very important so far as we are concerned in this cyclical time divisions presently where we are in Kali Yuga. Now we understand the cyclical time. If you divide that whole time chakra into two halves, exactly from top and bottom, this half and this half, so the top portion is the climax of Satyug. You follow? Climax of Satyug. And the bottom portion is the climax of Kali Yuga. You follow? Or no? Yes. You can understand climax of Kali Yuga or no? The power is at the maximum. Exactly. But darkness is at the maximum and light is also at maximum, both. Daylight maximum, darkest period maximum. Right? So now we are in this half. But the circumference wise, the time division wise, we are from the center. If you make, according to Vedantic philosophy, 4 segments. According to Jain philosophy, 6 segments. Both are same, but basically the understandings and differences that are there originally have come in the form of 6 divisions only. Through the revelations of the mysteries of the universe in all the facets, including this time facet, through omniscience and omniknowns, whenever they were there. Do you follow? So in that respect we are talking regarding time. ये हिंदी में बोलूँ नहीं, ये अच्छा रहेगा. तो 6 डिवीजन जो है वो जैन दर्शन के हिसाब से और 4 डिवीजन है वेदांत के हिसाब से. तो 4 डिवीजन कौन से वेदांत के हिसाब से? तो पहला सतयुग, तो दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चलो, और चौथा कलयुग. अभी जैन फिलॉसफी में जो एब्सोल्यूट्स है, उनकी स्थिति में उनसे पूछे गए प्रश्नार्थ के जवाब में सभी परिस्थितियों का सब सॉल्यूशंस खुला हुआ था, और एज इट इज सारी ब्रह्मांड और सभी की परिस्थिति व्यक्त हो गई थी. उसका शास्त्र बनते जाते हैं ना, लेकिन वो शास्त्र जैसा टाइम जाता है तो चेंज होते जाते हैं, वो तो चलते नहीं लंबे. तो ऐसी परिस्थिति में वो चलता रहता था. तो इस ढंग से जैन दर्शन में जो सतयुग है उसके 2 सब डिवीजन किए थे, और कलयुग है उसके 2 सब डिवीजन किए, और कुछ नहीं है. तो सतयुग was subdivided into 2 segments.
equal segment. And Kalyug also was given 2 segments. That is how instead of 4 they were 6. Do you follow? ऐसे हो गया. तो दोनों बात तो एक ही है, कालचक्र एक ही है, वही है और उसमें ही है, इतनी बात है. तो हम वेदांत की दृष्टि से बात करें तो सतयुग, यहाँ सतयुग क्लाइमेक्स है. नाउ सतयुग का अर्थ आपकी समझ में आया? आप क्या समझे सतयुग? शॉर्ट में बता दीजिए जल्दी. सतयुग महीना हैप्पीनेस, सत मीन्स धर्म, धर्म ऑल्सो और नो? है धर्म ट्रुथ, उसका अर्थ सतयुग बोलते हैं. कॉमनली सभी लोग यही समझते हैं, सामान्य. सतयुग मीन्स सब कुछ आ गया. और आज भी लोग इच्छा करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब सतयुग आए, क्योंकि कहीं ऐसी अपनी मार्गदर्शन देने वाले संतों वगैरह ने बताया है कि सतयुग आ रहा है. और कोई किसी ने ऐसा ही बताया कि आ गया है, ऐसा ही बताया. हम नाम से ना बोले कि किसने बोला, इसने बोला, लेकिन ऐसा चल रहा है. ये वेदांत फिलॉसफी में चल रहा है. वेदांत फिलॉसफी कहीं कहीं पीसीज में डिवाइड हो गई है. सो मैनी पीसीज दैट यू नो और नो. No, no, it is one only. Let us ask the authority on Vedanta. आप बताइए सर. तो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत, ऐसी तरह कई डिविजन्स है. उसकी धारा, विचारधारा. विचारधारा समझ में आया? विचारधारा वेदांत बोलते हैं. वेद एक है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनकी प्रोजेक्शंस इस ढंग से हो गई. तो खाली 6 हुई कि आगे भी सब डिवीजन हुई? आगे भी सब डिवीजन होते हैं ऐसे. तो वो सब डिवीजन वेदांत पॉजिटिव दृष्टि से है कि नेगेटिव दृष्टि से है? पॉजिटिव दृष्टि. सुनो बरोबर, पॉजिटिव दृष्टि. देखो सुनो. पर ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी जो है वो भी एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं है, एक दूसरे की एक क्रमशः ऊर्ध्वगामी श्रेणी के अनुसंधान में है. हाँ, फिर भी वहां भी सब डिवीजन होते हैं. और सब डिवीजन होते ऐसा एक ऑफशूट निकल जाता है नेगेटिव. हाँ, वो जो कमेंट्री लिखते हैं दादाजी, इसके ऊपर लिखते लिखते उसमें अलग हो जाए. लिखते हैं, वो भाष्य लिखने वाले सब अपनी अपनी टांग इसमें लगा देते हैं. तो उसमें टांग लगा के किसी को गिरा देते हैं और गिरा हुआ वो अपनी फिलोसॉफी निकालता है. और उनकी टांग भी टूट जाती है. ऐसा बनता है. तो उसमें से एक और भी ऑफशूट निकल जाता है और वो नेगेटिव इफेक्ट होता है. और वही बोलता है आप लोग सब गलत है. हमारा ये वेदांत जो है वो इस ढंग से हमारे ये मत है. उसको चार्वाक मत बताया. क्या बताया? तो होता है, सब कुछ हो सकता है. वाई इट हैपन सो दिस टाइम इफेक्ट. तो सतयुग वहाँ है. आज सतयुग सबको मंजूर जरूर है. तो सतयुग क्या है आखिर? ये सतयुग में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए. तो वहाँ सब कुछ है, सब पूरा धर्म सब कुछ है ना. तो आपको सच्ची बात जानना है जरूर, सच्ची. तो सतयुग जहाँ मैक्सिमम क्लाइमेक्स है वहाँ धर्म है ही नहीं. आपको क्या लगा इस स्टेटमेंट से? अरे समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं समझाऊं. पूछते क्यों नहीं? आगे जाओ, पढ़ो ने जरूर. इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन स्ट्रेट है. जैसे डॉक्टर होता है तो मैं जानता हूं करके बड़ा बड़ा हो जाता था.
इतनी मेडिसिन पढ़ने के बाद इतने स्ट्रेट कैसे रहे आप? हैं? अच्छा ठीक है। तो क्यों कि इतना क्लाइमेक्स पर सत्युग है और धर्म नहीं है, कैसी बात साहब? जगत मानेगा और जगत को मनाने की जरूरत है, हमें समझना है। क्योंकि अगर समस्या हल ही हो गई है तो ऐसी हल हुई परिस्थिति में हम ठीक ढंग से सभी व्यू पॉइंट से हम छुटकारा तो पाया है, लेकिन इस ढंग से पक्के हो जावे कि किसी भी व्यू पॉइंट ऐसा सब्जेक्ट टू cyclical टाइम कैन एवर डिस्टर्ब अस। डू यू फॉलो? कैन हैव एवर एनी इफेक्ट, इसी कोई भी असर हमें पर हो कि हमें कुछ नमा सके, ये सके, कुछ नहीं कर सके, सीधे रहेंगे। तो उसके लिए तो स्प्राउट हो के जरा ट्रंक बंक अच्छी हो के मजबूत हो के मजबूत होना है और मूड भी अच्छे रहने हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग। कितना भी आवे ना तो नहीं हिलेगा, ऊपर से इतना इतना सब कुछ रहेगा, लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी थोड़ा कच्चा है, इससे ऐसा होता जाता है, लेकिन यहाँ से कुछ निकल रहा है। कभी तो ऐसा बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पक्का है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दैट इज कॉल्ड प्रतीति। ये कभी भी नहीं जाएंगी। आपको थोड़े प्रश्न होते रहते हैं, वो जरूर है, लेकिन ये बात है तो उसको है, और पीछे वो है और उसमें शक्ति है, तो चला गया तो पीछे अपनी तरफ से यहाँ से बल मिलता है, करके फर्स्ट क्लास हो जाता है, और पीछे आराम से लहरता रहता है और ग्रो भी होता रहता है। और ग्रो खुद नहीं होता है, वो बनता रहता है। क्या बताया? बनता रहता है। हाँ, रिजल्ट हमेशा बनता रहता है, रिजल्ट को बनाना नहीं पड़ता। वो तो सही है ना, वो तो कोई भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी ये सतयुग में धर्म नहीं कैसा, तो सतयुग में जो ह्यूमन स्टेट है और सारा सभी वर्ल्ड की स्थिति, वहाँ जो जो ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी इस ढंग से है कि वहाँ खाली हैप्पीनेस ही है। इसीलिए वो क्लाइमेक्स बताया सतयुग का, खाली हैप्पीनेस वाला काल, जहाँ कोई इच्छा होती नहीं, डिजायर होती नहीं, फिर भी शरीर है, मनुष्य है, मनुष्य ढंग से है, और वो भी दोनों साथ में भी है। ये आदम एंड ईव स्टोरी वो तो बनाई हुई है, ओरिजिनल नहीं। सारा वर्ल्ड उसमें से चक्रावा खा गया हुआ, सबको चक्रा में लगाता रहता है कि चलो हमारे साथ घूमो। हम घूमते हैं तो अकेले अकेले क्यों, तुम खड़े हो, आ जाओ मेरे साथ, ऐसा करता है। सच्ची बात है। क्या हम उनके साथ घूमना जरूर है? मैं हम तो सेंटर में होके देखते रहते कैसे घूमते रहते हो, चलो ऐसे नहीं, सेंटर में घूमते रहे। तो मैं शुद्धात्मा वो सेंटर, और विनोद जो है उनका आगे वो जो गुमराह में आ गया था, वो अभी गुमराह में से तो हम तो अंदर आ गए, लेकिन अंदर आ गए वो है, लेकिन थोड़ा बीच वाला स्टेट है ना, तो हम तो वो स्टेट वाला है, और हमारी तो स्थिति हो गई। तो उसकी पक्के होने के लिए वो बीच वाला स्टेट है, गुमराह में आ गया हुआ है, वो अंदर आ गया, फिर भी वो बीच का स्टेट संलग्न है उसका, इसीलिए उसको लगता है कि फिर भी अभी गुमराह क्यों लगता है, सारा गोल गोल फिरता क्यों लगता है, मैं नीचे उतर गया हूँ, अभी चक्राव पर नहीं हूँ मैं, ऐसा लगता है ना कि नहीं लगता है? तो गए भाई, तुम प्रज्ञा बोलती है हमें, समझ खिलाती है, ओपन करती है कि आप थोड़ा पेशेंस करो। ये तो आप आगे बैठे थे तो उसके ऊपर से इतने गुमराह लिया तो वो है साथ में आ गया है, अब नीचे बैठ गए, सेंटर में आ गए, तो वो बाकी निकल जाता है, इसीलिए है, इसीलिए घूमता हुआ फिरता लगता है।
अभी बंद हो जाएगा। देखो इतनी बात की, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ा कि थोड़ा एक ओछा गमता हो गया? तो हाँ साहब थोड़ा लगता है, तो अभी हो जाएगा। इतनी देर है और क्या है, समझ में आया? तो उसमें कहाँ तो कोई धर्म नहीं, ऐसी स्थिति है, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, दोनों साथ में है, फिर भी धर्म नहीं है, लेकिन खाली सुख है। ऐसा सुख कि वहाँ तृप्ति तो नहीं है, क्या बताया? लेकिन सुख के हिसाब से जो हमेशा संतोष भरी स्थिति है वो पक्की है, वहाँ कोई कमी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं, फुल है, फुल। जैसा कड़ी भूख लगती है और ऐसे इस प्रकार की पुण्य है वहाँ। तो पुण्य के प्रकार से उसको सत्युग बताया। पुण्य का अर्थ ये नहीं कि वहाँ से छुटकारा पावे, लेकिन वो तो घूमने का ही है पुण्य है, लेकिन ऐसी पुण्य की प्रकार होती, घूमते घूमते वहाँ चले जाते हैं। और जन्म पाके वो पुण्य का हिसाब कुछ 200,000-300,000 ईयर्स तक चुकाना पड़ता है। कितना? 2000 हो, 100,000 हो, 2,000 सादा मत बोलो, 100 सादा 1000 बोलो तो अभी वो भी ज़्यादा हो गई ना। માની ન શકાતા કાળ ગણતરીનો કે ખ્યાલ જ નથી આવી गतारो બીજામાં ઉતરેવી વસ્તુ નથી ये उसको समझना है ना विनोद भाई को। ऐसी परिस्थिति 200,000 प्लस जो है जिसकी स्थिति, वो उसमें से वो पुण्य है ना, उसको खर्चना ही है और कुछ है ही नहीं, पूरा क्रेडिट ही है बड़ा। तो इसीलिए वहाँ डिज़ायर होती है, डिज़ायर तो होनी है। तो डिज़ायर होती है, डिज़ायर होती है कहाँ जावे, तो समझ लेते हैं कि हाँ वो पुण्य ही दिखाता है कि यहाँ चले जाओ, देखो अब डिज़ायर करो आपको हो जाएगा। तो चले जाते हैं, तो इससे चले जाते, वहाँ जाके जगह डिज़ायर करते मिल जाती है, तो मालूम पड़ता है तो यहाँ गए तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो ये पेड़ है, तो ऐसा पेड़ तो यहाँ तो कोई देने वाला नहीं, कहाँ से आया? तो पेड़ ने दिया था, तो पेड़ ने दिया ले ली, तो डिज़ायर संतोष हो गई। जो प्रकार की डिज़ायर थी और वेरी लिमिटेड, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स डिज़ायर थी नहीं वहाँ, नहीं तो सत्युग कैसा कहलाता? आप समझे कि नहीं? हाँ, और ऐसा युग किसको पसंद नहीं आएगा आप बताओ? सभी को आएगा कि नहीं? अगर उसमें हो ना हो और उसमें जीवन हो तो पसंद आएगा कि नहीं? धर्म नहीं है, लेकिन बताओ ना आप, आपको पसंद आएगा कि नहीं? मुझे बताओ। सेटिस्फाइड हो, लेकिन उसमें क्रेडिट कोई नहीं, नहीं क्रेडिट तो है, डेबिट नहीं, लेकिन पूरा तो पसंद धर्म नहीं है, लेकिन ऐसा है तो मजा आएगी कि नहीं? और ऐसी मले तो पसंद आएगा आपको? ऐसा वहाँ ऐसा जरूर आएगा, कौन नहीं सोचेगा? कोई भी सोचेगा। ये टाइम में बैठे इसीलिए, क्योंकि डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन नहीं कर रहे, यहाँ बैठे ये परिस्थिति को कौन घुमाएगा इसे चांस? आपको पसंद आएगा? वहाँ तृप्ति नहीं है ना। और वैसा मत बोलो, आएगा, हमारे सवाल का जवाब दो। थोड़ा टाइम आएगा, थोड़ा टाइम आएगा जरूर। और आपको, अम्बा बहन को कितना आएगा? बोलो 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 नहीं, थोड़ा गम से थोड़ा पसंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बताते हो मगन भाई, आप बोलो। आप मिल गए, अभी क्या इच्छा? अरे सत्युग की बात करते हैं आप, मैं क्या बात करते हो आप? दादाजी, कौन सी अपेक्षा से आपने बताया कि वहाँ पर धर्म नहीं है? भाई अभी तो पूछ बात चलती है और आप अलग पूछते हो, अभी उसका तो निकाल होने दो। आपको पसंद आएगा नहीं? बताओ, चलो इतनी अच्छी परिस्थिति है, धर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो दारू पिया जैसा रहेगा।
विनोद समझ गया। विनोद समझ गया, समझ में आया? तो वो तो है कि आपको मालूम है वहां धर्म नहीं है तो स्थिति कौन सी है? वहां ऐसी परिस्थिति है कि जैसा यह मनुष्य कोमा में है ऐसा वो सुख का कोमा में है। और कोमा वाली स्थिति ऐसी 2 लाख 3 लाख किसको पसंद आएगी? यहाँ 1-2 दिन है तो लोग हे हो जाते हैं, और यहाँ इतनी कोमा समझते सीजल को पसंद आएगी? सच्ची बोलो। 100% नहीं है। हाँ, अरे वाह, तारे बाकी समझी गए। यहाँ पर तो कोमा तो प्लग कर देते हैं। अभी समझे आप? परिस्थिति बड़ी अच्छी है। तो यहाँ एक पुरुष और स्त्री दोनों है साथ में, और वैसे जो है ऐसे साथ में है, और साथ में है तो बिना हिसाब नहीं है, पूरा हिसाब से है, और हिसाब के साथ दोनों है, और वो दोनों साथ में रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति ऐसी है कि वो दोनों, उनकी आयुष्य निकल जाने के समय पहले ही ऐसे दोनों को जन्म देते हैं साथ में रह के, और वो जन्म देते ही थोड़ा समय होते ही वो पास हो जाते हैं। वो जन्म वाले पीछे ऐसे ही जीते रहते हैं। यहाँ न फादर इन लॉ है, न मदर इन लॉ है, और किसी भी इन लॉ कोई नहीं है वहाँ, किसी भी प्रकार के और प्रकार की कोई, दोनों के तरफ की। तो दोनों बोलना ही है, नहीं तो नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। हाँ? की वाला पहला बोलना चाहिए, पीछे का। बहुत बड़ा झगड़ा होता है, समझे ना? ऐसा रिलेशन ही नहीं हुआ। क्यों? सत्युग है, धर्म नहीं है, सुख है। उसको युगोलिया, युग का जीव वो बोलते थे ऐसे, युग, युगल। एक युगल है, युगल को जन्म देते हैं, चले जाते हैं। वहाँ राज्य व्यवस्था की स्थिति की जरूर नहीं है, कोई कायदा की जरूर नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था की जरूर नहीं है, क्योंकि दो ही है और कोई है ही नहीं रिलेशन। कहाँ समाज, किसकी जरूर? कोई जरूर नहीं। कुछ मेहनत की जरूर नहीं है। जहाँ जाते हैं और समझ गए लिमिटेड जो है उससे पूरा संतोष वाला है पूरा। तो ऐसे 10 प्रकार के वृक्ष, वो भी उनका ऐसे पुण्य वाले, तो वृक्ष भी, वनस्पति भी पुण्य वाली, तो वनस्पति पर ऐसे पुण्य वाली होती है। उसमें से श्रेष्ठ पुण्य वाली जो वनस्पति है वैसे 10 वृक्ष, जिससे मनुष्य में भी पुण्य वाले होते हैं, ऐसे वहाँ भी है। बहुत बड़ा समाज है उनका। उनका समाज नहीं, उनकी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, और लॉ ऑर्डर वाली है। सत्युग की, वृक्ष की, हाँ, वो तो प्रॉपर ऑर्डर। सर बोलो सर, इसी व्यवस्था। तो वैसे 10 वृक्ष होते हुआ करते थे जो ऐसे उत्कृष्ट पुण्य वाले, तो उनका पुण्य के हिसाब से वहाँ से उनको निकल जाना है और आगे बढ़ाई होनी है इस ढंग से। और ऐसे पुण्यशाली के लोग के लिए होना ही है, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा। उनको इच्छा ही नहीं, फिर भी इच्छा होती है, शरीर तो टिकना है, तो क्या करें, क्या करें? तो ऐसे उसके लिए अरेंजमेंट तो होनी है ना, उसको मेहनत नहीं करनी तो कैसे करेंगे साहब? कल्पवृक्ष मेहनत नहीं ना उनको, मेहनत नहीं, और कल्पवृक्ष मेहनत करते हैं। नहीं, देखो उसके ऊपर से आपको अक्रम विज्ञान समझा जाएगा बड़ा अच्छी ढंग से। और ऐसी पकड़ आएगी तो छूटेगा ही नहीं, ख्याल। जहाँ जाते हैं विश करते हैं, और कल्पवृक्ष उनको उनकी डिजायर्स पूरी करते हैं, मिल जाते हैं। अगर भूख है तो भूख वाले, अगर ढंकना है, ठंडी लगती है तो मतलब ढंकने वाले, ऐसे प्रकार के होते हैं। सभी होते 10 प्रकार के चलते हैं। और सतयुग, इतनी बड़ी आयुष्य चलता ही रहता है, और पूरा सतयुग होता है, वो सेगमेंट पूरा होता है, वहाँ चलता रहता है। और वहाँ 2500 प्लस ऐसी बड़ी काया,
नाक की साइज 300-250 फीट, 50 फीट। एक पग का नेल एक प्लेइंग ग्राउंड सर खासा, प्लेइंग ग्राउंड। बोलो सर, तो वहां उनको कहाँ जाने की जरूरत कहाँ रही पीछे? हम इतने छोटे, लेकिन कितने बड़े ग्राउंड की जरूरत है हमें। समझे ना? तो इसीलिए देखो कर्म की व्यवस्था क्या चीज है। कर्म, पुण्य, उसके प्रकार और उसकी व्यवस्था और उसके ढंग से जीवन और उसमें कर्म के हिसाब घूमना, बहुत ये सतयुग की परिस्थिति आ गई। तो वहाँ उसको अगर भूख लगे तो कभी तो कोई एक हफ्ते, 2-4 हफ्ते, महीने में कहीं थोड़ी सी भूख सा लखे तो इच्छा करे वहाँ जावे तो एक वो छोटा सा चना की दाल वाला है ना, चना की दाल इतना सा उसको मिल जावे, कल को एक थोड़ा ले तो संतोष। इतना बड़ा शरीर, उसकी भी साइंस आप समझते हो कि समझना चाहिए? साइंस है, ये कैसा बन सकता है? इतनी काया और इतनी काया में इतना ज्यादा, ये क्या है? और फिर भी होता ही नहीं। और लाओ एक ही सी बात हो गई। देखो यहाँ कर्म का प्रकार और ये प्रकार में जो जुटी हुई सारी व्यवस्था ये आती है, ये इस प्रकार के कर्म, इसी बात है। तो उसका और डिजायर्स, इच्छा, उसके साथ कितना संलग्न पड़ा है वो आप समझिए। फॉलो। राजा है, सुखी है सभी ढंग से और बड़ा पुण्यशाली है, कुछ नहीं करना पड़ता और खाली हाजिरी प्रेजेंस से सब बना रहता है और उसको सभी इच्छाएं पूरी होती जाती है। और जो झुपड़े में है वो है, उसकी इच्छाओं कितनी जैसी निश्चित स्थिति वैसी इच्छा। क्या इतना बड़ा आर्मी और लश्कर के बात क्या करूं, बहुत बड़ी लश्कर। और जैसी लाइटनेस ऑफ द कर्म ऐसी इच्छा का लाइटनेस, और वहां तो बिल्कुल लाइटनेस है तो वहां इच्छा, इसीलिए इसी तो बॉडी कैसा सस्टेन हुए। लेकिन ये बॉडी हमें इस ढंग से समझते ऐसा नहीं है। उसको हड़ू कर्म वाला बॉडी बोलते हैं। क्या बताया? हड़ू मीन्स लाइट। कर्म महीना अहंकार, जो अहंकार की परिस्थिति है वो परिस्थिति इतनी लाइट है, हड़ी, तो उस हिसाब से वो शरीर भी ऐसा होता है। अपने में बोलते हैं ने, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ऐसे बोलते हैं। आपको मालूम है ये क्यों बोलते हैं ऐसा? और जो बड़ा होता है ना बहुत भोला है बोलते हैं। समझ में आता है? हाथी इतना बड़ा तो बहुत बुद्धि वाला, और आंट उनको कितनी इच्छा, तो निंद्रा भी नहीं, 24 कलाक घूमती रहती है, इकट्ठी करती रहती है। किसके लिए? तो दूसरा कोई रोए ना, वो तो करे, उनको कितना चाहिए। तो बाकी की जो है वो भी ढूंढने जाते हैं तो मिलता नहीं और लोग उसके पीछे ही पड़ते हैं, चले। इसलिए उनको क्या करे, तो उनको मिल जाता है, एक आ जाता है तो सब खलास कर देता है। आता है ना अंदर, कितनी मेहनत का डग बनाया हुआ सब साफ हो गया। सब लोग बोलते हैं ना, उसका मैंने सब ले लिया, अरे भाई तुमने मेरा ले लिया, वो तो मुझे हजम हो गया, क्या करूं। सब बोलते, अरे बाप रे, वो दूध पाक हजम होता है, हजम हो गया ऐसा बोलते लोग। ये तो हिट हजम, समझे? सतयुग। तो उसमें से ये परिस्थिति, जैसी ये स्लीपिंग का टाइम है और यहाँ क्लाइमेक्स ऑफ डार्कनेस है, तो स्लीपिंग टाइम में तो कम होता जाता है, तो वो पुण्य का प्रकार कम होता जाता है
इसी ढंग से शरीर और सभी उसकी व्यवस्था कर्म के अनुसार सारी स्लीप होती जाती है। लेकिन सारा सत्युग का समय चलती है बोलो। लेकिन जो डिजायर्स है उसमें थोड़ा फर्क होता है और थोड़ी 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 डिजायर होती है। तो वहाँ इतनी ज़रूर है, उसके आगे उसकी डबल साइज वाला आहार मिले तो चले, एक हफ्ते भर चले, उसके थोड़े आगे जाए, इंड में जावे तब उससे थोड़ा बड़ा आहार मिले, और ऐसा ऐसा चलती रहती है। वो पूरा सतयुग कितना बड़ा सेगमेंट है बताइए, ये 4 सेगमेंट से कितना बड़ा सेगमेंट है, मिलियंस, कितना बड़ा। पीछे आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में वही परिस्थिति, ऐसी ही परिस्थिति 2 वाली, और कुछ नहीं, नो समान, nothing required, because still there it continues that state, but on a sleeping scale, but till it does not require all these things, and that arrangement goes on till Treta end, and as it slips further and further, and kalpa rukshas one by one vanishing because of the karmic general sthiti, and in the vegetational all kingdom, nature is balanced. You follow विनोद, समझ में आता है ना? पूरा सभी जगह बनता है, तो खाली एक वृक्ष बाकी रहता है, वो भी चला गया और त्रेता का एंड आया, और एंड में समय बाकी रहा और वृक्ष चला गया, तो लोग है तो उसकी परिस्थिति क्या होगी? उसको इच्छा होती है, भूख तो 1-2 दिन में लगती है, और थोड़ा खाओ तो संतोष हो जाता है, लेकिन इच्छा होती है तो भूख के कहाँ जावे? अभी वृक्ष भी चला गया, लास्ट वाला तो भी चला गया, तो कहाँ जावे? तो उसमें करे तो इसे एक दूसरे को कुछ करने लगे, तो फ्रिक्शन चालू हुआ। फ्रिक्शन चालू हुआ तो उसमें से ही डेवलपमेंट्स में जो प्रशाली है, समझ वाले हैं, वैसे भी आते हैं, लेकिन रेयर है। कितने? वो तो वेरी रेयर सर। तो मास में उन्होंने परिस्थिति हैं, बरोबर लोग है, तो सब उनके तरफ देखो, आप कुछ करो, ये अभी चलेगी नहीं परिस्थिति, ऐसा तो सब ऐसे कि आप कुछ करो, बरोबर करो। अच्छा, तो उसको राजा बनाते हैं, और राजा बनाते ही सिचुएशन करते हैं। वो क्लास है बिगिनिंग, स्टूडेंट्स लर्नर्स आर वेरी नोशन, देयर इज लेडीज वुड लाइक नर्सरी क्लासेस देन हायर क्लासेस, नहीं? Imagine nursery classes are better, Meena Ben. Are you listening? મજા નહીં કામ કરે છે તમારા હાથ સાંભળ. દાદાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. Look here. So then this first emperor, and he is in this top 63. He is the first one. Them that burns this time. But in the times that are to follow, it needs things, and for that it has to be there in the beginning. See how it is. And having established and being a wonderful, and Dada Bhagwan also amongst them, also very fond of wise, also was there. ये तो कमनी थी उसमें, और और राजा है, व्यवहार है, तो खंबा। अभी मेरा समय आया है, ये लोग भी सुख में आ गए, थोड़ी मेहनत से बहुत कुछ मिल जाता है, तो इतने सुख में आ जाएंगे। तो बलसाड़ में ये शुगर केन की खेती में इतने सुख में आ गया, तो वो कितने सुख में आए होंगे बताओ मगन भाई? बहुत सुख में है सारा गुजरात में। In Gujarat district, Gujarat state, that district is very happy, Surat, and that's sugar cane लगाते हैं, मेहनत का तो कम मेहनत वाले को बुलाते हैं, मजा करा करते हैं। उनको मेहनत तो की थी थोड़ी थोड़ी सी, राइट? वैसा ही था वहाँ, शुगर केन क्रॉप, मजा करो बस, और कुछ नहीं, और वैसी ज़्यादा भूख नहीं, थोड़ी दिन कम बन गया। तो उसमें से ज़्यादा जरा लेजीनेस न और पीछे और एक दूसरे करने लगे, तो बोला उन लोगों को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो स्लीपिंग टाइम आगे आएगा तो कहाँ जाएंगे लोग, तो उसको धर्म भी देना पड़ेगा। तो धर्म बिगिनिंग, ही इज़ द इनिशिएटर ऑफ द धर्म।
वहाँ धर्म यहाँ बिगिन होता है। तो सारा जो पिरामिड है वहाँ का टॉप मोस्ट जो बर्थ है दैट इज ऋषभदेव भगवान, जो भागवत में बताया गया, और उनके 100 sons and 2 daughters. Do you follow? एंड जब सबसे बड़ा लड़का वो आउट ऑफ दैट ब्रैकेट ऑफ 63 बेस्ट फॉर्म्स, यहाँ ही वो ब्रैकेट वाले 3 फॉर्म्स वही जनरेशन में जन्म है। उसमें से सर्वप्रथम ऋषभदेव भगवान आदिनाथ और धर्म के परम पिता, इनिशिएटर, वो सोशल एस्टैब्लिशमेंट की, लॉर्डर एस्टैब्लिशमेंट की, और धर्म भी उसने प्रस्तावित किया, सबको दिया, और वो साधु बने, तपस्या की, और कि वो ज्ञान हुआ, सबको धर्म दिया। ये पहले सर्वप्रथम। सो आउट ऑफ 24 ही इज द टॉप। और वही शिव जी कैलाश वाले, नहीं साहब, और उन्हीं का ही दादा भगवान को परिचय साहब। दादा भगवान पक्के थे, फिर भी वहाँ परिचय करके तो समझ गए कि शिव जी है, लेकिन नितराज नहीं बताते नहीं क्या है, मैं सब कुछ बताते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं, कुछ है उसके पास, उसकी जो क्या बोलता है रहस्य, उसको हिंदी में क्या बोले, राज नहीं बताते। तो मैं वो मुझे जानना जरूर है, लेकिन उनसे बहुत प्रसन्न थे उनके साथ, लेकिन छोटेपन से। प्रिंस तो नहीं थे वहाँ, और रॉयल फैमिली में नहीं थे, लेकिन छोटे थे, लेकिन उनकी तरह की स्वभाव वाले थे। क्या बताया? हाँ, तो कीमत वो है या रॉयल पैलेस में बर्थ पाने की है? नहीं, वो स्वभाव है। ऐसी भगवान के रॉयल पैलेस में आ तो जरा गम्मत करिए છે થોડી, શું કરીએ, કશું જાણતો નથી, પણ હા નીકળે જ આ બધું. You see, for me it is not past, it is present. Such a big difference. I don't want to claim or taste as taste taken that I was there at that times, but it comes out. Dada Bhagwan was there, that I know. That's all. That much I have realized. And you can also know, you can also understand and know very well. तो ऐसे थे। तो सबसे बड़े लड़के को बोलते हैं राज संभालो, मैं त्याग साधु होके धर्म की स्थापना के लिए, तो पहले साधु। और यहाँ वो पहले आउट ऑफ 63 बेस्ट फॉर्म्स, पहले चक्र जो तीर्थंकर 24 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं आउट ऑफ 63, उसमें से सर्वप्रथम ऋषभदेव हुए, 24 होते हैं। और सारा ये पिरामिड का ब्रैकेट के जो सर्वोत्कृष्ट है, ऊपर का टॉप 1/8, ओनली 1/8, उसमें 24 तीर्थंकर रहते हैं। 1/8, you follow? Because that is the only portion that remains above the water of a floating iceberg. You follow? The huge mass. Titanic cannot sustain the. You see, that is how it is. So for number 1, and same generation, same family, ये जो जिसको राज संभालने को देते हैं और सभी प्रिंसेस को बोलते हैं वो बोले ऐसा करो और ज़्यादा अमचम नहीं करो, तुम अपना अपना हिस्सा ले जाओ, चलाओ, लेकिन नहीं करो। लेकिन ये जीवन का मकसद नहीं है, समझ लो, हम साधु होते हैं तो झगड़ा मत करो, चलाओ, करो। तो सबको समझ गए, तो ये तो बड़े हैं, सबको बड़े दिया, बड़े बड़े हैं क्या, लेकिन हम भी कम हैं, हम भी प्रिंस हैं, हम भी रॉयल प्रिंसेस हैं। तो वो बोले लेकिन चलो उनको हम अपना एक जगह ले लो, तो सबको अपना इलाका बांट लिया। क्या किया? और बड़े भाई तो उदार थे बहुत, कोई बात नहीं, भाई है, लो चलो जाओ सब लोग। और
वो थे सबसे बड़े। वो आउट ऑफ 63 जो मोनेड के पोर्शन के बीचे है, उसका ऊपर का पोर्शन में 12 होते हैं। कितने? 12 चक्रवर्ती। 3 भाग करो तो ये उसका पीछे मिडल पोर्शन 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये तो खाली सिमिली देता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा मत समझना जमीत। तो इसे उसमें से सर्वप्रथम चक्रवर्ती वो सबसे बड़े उनके लड़के, वो भरत नाम था उनका। क्या? भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कब के ये सब ब्रदर्स और ये है तो उन्हें वो तो उनकी व्यवस्था में था, कुदरत की, नेचर की। और चक्रवर्ती तब होते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होना है, भले भाई हो कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं बोले मैं स्वतंत्र राजा हूँ, सब उसके नीचे में ही आना ही है। तो वो ये आइडियल राज व्यवस्था से विदाउट एनी ऑपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, एवरीथिंग, सबकी जीवन अच्छी चले, वो तो बहुत जिम्मेदार होते हैं। इसे तो उनके सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं संभाल सकता, एमॉन्गस्ट ऑल ह्यूमैनिटी कोई नहीं। इसलिए चक्रवर्ती इतनी बड़ी पुण्य होती है उनकी, समझे? तो वो भरत चक्रवर्ती। और जब सभी को करके चक्रवर्ती पद उनको प्राप्त प्रस्थापित हुआ, तब पीछे सारे मालिक हुए तो भारत में थे उस टाइम में। उसके समय की मर्यादा क्या समझे? अभी हम 2000, 5000, 10,000 बात करते हैं और यहाँ के बिलियन की बात करते हैं। पृथ्वी का जन्म 4-4.5 बिलियन के आगे गए, क्या करें? बोलो, जो परपेचुअल है उसका जन्म ढूंढते हैं। भी क्या बतावे? हमें सब यही पाठ सीखे थे ना पुष्पा, आपको भी यही सिखाया गया था? हाँ? क्या करें, समझ में आया? और आपको यही सीखे थे इसलिए तो आप पूछते हैं, तो यहाँ से समझना है। तो ये पहले, और ये पहले चक्रवर्ती आउट ऑफ 63, आउट ऑफ 63 फॉर्म्स टॉप आर 24 विच आर द ultimates and final developments of the human form in the form of highest states of absolutes that are responsible for the release from all wandering as per the time cycle due to karmas, and due to their nimitta presence, number of them, so many people get freedom and they get this gnan and knowledge in the God. Simplest way. Not, you see? And today the gnan that you have got is even more simpler than that. Let me tell you, sir. We may finding that simple, it is more simple than that. Why you feel that it is difficult? Tell me. नहीं यहाँ पे जाओ। Why? बोलो नो, जोर से बोलो। नहीं 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 सिंपल अच्छे बोलो न तो પછી સિમ્પલ છે મને ખબર થઈ ગઈ આટલું જ કહો ખાલી કેવા કદર કહો છો સાહેબ સાહેબ તમે બહુ ક્લાસ નહીં થઈ સરખા લેતા હા તમે સાહેબ તમે આચાર્ય આપ બી આવું કરો છો આપ તો પુત્ર આપ પણ આપ કરો છો સિમ્પલ છે પણ સરખામણી ના કરી શકાય કે પેલું કેવું છે ખબર નથી પેલો તો વખત બહુ સીધો હતો straight forward, people were straight forward in everything, but they were भोले, क्योंकि सर्वप्रथम भोलेनाथ थे वो, उनके भोले लड़के थे सब, ऐसे भोले थे सब, और साथ में जड़ थे, क्योंकि बिगिनिंग थी ना, कुछ मालूम नहीं, आप बोलो ये तो ये करो, ये करो ये तो ये करो बस, अगर उसको ऐसा बोलो कि अभी बस ठहर जाओ, नहीं बोलो तहाँ तक वो करते ही रहेंगे। अरे तो बोलो करो, लेकिन वो तो आप बोले करो तो करते ही रहते हैं। नहीं आप बोले नहीं ना कुछ हमको कहाँ कब ठहरना है, तो आए अरे ऐसा नहीं समझो, थोड़े समझाते थे कुछ
सोशल रिलेशन क्या हुई मालूम नहीं, तो क्या करे, उसको समझाना पड़ा। अभी झगड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, तो क्या करना, तो क्या इसी थोड़ी सी मेहनत, जरूर ज़्यादा नहीं है मेहनत, ऐसा करो तुम। और सोसाइटी सोशल रिलेशन क्या है, तो देखो ये है, तुम ये हो, ये सब रिलेशन बता दिया। सोशल व्यवहार वहाँ से चालू हुआ। और सोशल एस्टेब्लिशमेंट फॉर द जनरल कॉमन गुड ऑफ ऑल सोसाइटी, उसके डिवीज़न करने हैं ना, डिवीज़न ऑफ वर्क उसको बोलते हैं। और ये लोग क्या इकोनॉमिक्स करेंगे, वो तो ये लोगों का काम, क्योंकि उनका जो करना था वो तो बहुत व्याप था उसका, तो कितना बड़ा। और भरत चक्रवर्ती का व्याप सारा वर्ल्ड में था, होल वर्ल्ड वॉज अंडर हिज रूलरशिप। आपको मालूम नहीं मानेंगे नहीं, भरत चक्रवर्ती सुना है? भरत तो सुना है, पर ये तो सेम और नहीं सेम ने मत बोलो ने, भरत चक्रवर्ती, क्योंकि ये तो वेदांत फिलोसॉफी एंड थॉट है ना, क्या करें हम साहब। और ये तो सर्वज्ञ से आया हुआ, तो कहाँ से मिलेगा आपको? कुछ भी आप दो मिलाने जाओ, कहाँ मिलेगा और कहाँ से आप रास्ता मिलेगा? सर बोलो ना पुष्पाबेन, क्या करें अभी इस समस्या में? शंका करनी है आपको, डाउट करना है। भरत चक्रवर्ती फर्स्ट, तो इसीलिए उसका व्यवहार सारा वर्ल्ड वाइड था। जब चक्रवर्ती होते हैं उनके लिए ये वर्ल्ड सारा उनके अंडर में होता है, इसीलिए उनके लिए वर्ल्ड स्मॉल है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर है उसके लिए इतना स्मॉल नहीं है उसको, लेकिन उनके लिए स्मॉल है। वो चक्रवर्ती का स्टेट है इतना बड़ा। चक्रवर्ती समझते हो कैसे क्या है उसकी, जब उसका डिस्क्रिप्शन आप सुनो तो आपको ये लगे, तो डाउट है, ऐसा शंका, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। ऐसे ह्यूमन बींग्स थे of the highest order, below that 1/8, and at the top level, that the top permanence, you see, and not of ordinary act, बहुत पुण्यवालशाली, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य वाला इसे ही वो हुआ करते। मैं तो पहले थे, और ऋषभ देवगन आउट ऑफ 63 जो टॉप ब्रैकेट में है 24 और तीर्थंकर होते हैं, क्या बताया? टॉप 24 और बाकी के जो है क्या बताया? बाकी के कितने रहे? 24 बात कर लो, 39 रहे, वो नीचे के पोर्शन के में आ गए, उसमें 2 डिवाइड हो गए, उसमें से 12, तो बाकी कितने रहे? 27, वो नीचे 12 और 27 ऐसे डिवाइड हो गए। समझ में आया? और उनकी व्यवस्था में सारी वर्ल्ड की व्यवस्था थी, इसी परिस्थिति थी। बोलो, हम तो सुनते हैं अपने इंडिया नहीं, तो भरत चक्रवर्ती थे और सारा वर्ल्ड उनके रूलरशिप में था, इसीलिए वहां से ये हमेरा भरत क्षेत्र माना गया। अपने वर्ल्ड को भरत क्षेत्र बोलते हैं। भरत शब्द भारत पर से भारत को लगा हुआ लगता है, हम सोचते हैं कि तो हमेरा बनाया हुआ शब्द है, नहीं, ओरिजिनल है, परपेचुअली ओरिजिनल है भरत क्षेत्र। तो जो सारा यूनिवर्स में मध्य लोक है, वहाँ अपनी सरखी बाकी ह्यूमन वर्ल्ड है, दैट यू नो और नॉट। 15 वर्ल्ड्स है अपनी लाइक अवर्स, और डू यू डोंट नो? वी आर टेलिंग यू, यस। So 5 of them are exactly like us Bharat Kshetras, 5 of them are Airavat Kshetras, they are name of these Kshetras, and 5 of them are Mahavidya Kshetras. You see, geophysical locational aspects of all these 15 worlds are such that in Bharat Kshetras and Airavat Kshetras, those Kshetras are subject to changes of eons as per this cyclical time, and Mahavidya Kshetras geophysical locational aspect in this central plane is such that the time cycle, whole time cycle is of uniform nature, that is of Dwapar Yuga
after Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Satyug, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Do you follow? This is how we want to understand the time and all situations. Do you follow? So at the end of Treta this happened, beginning. And son of Bharat, fourth son, he was there. That was grandson of Rishabdev Bhagwan. And same, over the period of time, through the whole Dwapar Yuga, and at the end of Dwapar Yuga, when the things were at such a pass, society, social living and all human setup arrangement, that everything was chaotic, and then last 24th Tirthankar birth was there, and he was Lord Mahavir, and grandson of Rishabdev, now getting born as Tirthankar last year. So in the same generation, out of these 63 best forms, 3 forms were from that generation only. Do you understand? Top 24 Tirthankaras, 12 Chakravartis and 27 others. Now that Mahavir Bhagwan also as a Tirthankar, having got born, passed through so many various phases, and in the scheme of karma and nature, he had to pass through the various stages, of which out of balance 27, he had to pass through there, one of them. And there also he became the number 1 in that. Now, after 12 Chakravartis, whenever there is a Chakravarti, world ruler there, headquarters always in Bharat Kshetra, that is Bharat, that is India, in present day terms. But originally Bharat, you follow? Headquarter of the Chakravarti, always there, and the rulership all over the world. Gaddi. That is how. So, when Chakravarti is not there, then world cannot be chaotic. World has to be in order. And so long as this Dwapar Yuga is there, and all these 63 forms are yet to take birth, they take in the scheme of the whole thing one by one. So when Chakravarti is not there, the world gets divided into 2 parts to be ruled by 2 rulers. Do you understand? And a assistant to one ruler on one compartment, and a singular other ruler of the other half of the world as one only. Now for that one to be one, he is in such a state that he does not want anybody. I don't want, I am like that. He is of that type, that egoism type. And here that egoism such that it is a positive egoism. Yes, that takes birth. So that positive egoism birth is called Vasudev Narayan. You see, assistant together, who? Balram. You see, these are not the names as we know as Krishna and Balram, but these are, Balram is a common name and Vasudev is common. Vasudev and Balram always take birth as brothers with mothers not same, but brothers, and yet between them blood relational bond is so thick that over the whole world you will not find. So much so. आपको समझ में आया? उसका जो लोही का संबंध है बहुत इतना थिक रहता है. दोनों मदर अलग है फिर भी, which is very rare, and that is exception, very high order. और उनके सामने ऑपोजिट्स वाले हैं जो पावरफुल, कोई नहीं हम ही है, ऐसा करने वाले होते हैं, वो एक बाजू, उसको प्रति वासुदेव बोलते हैं, opposite of the Vasudeva. But he does not need anybody, he is on his own. That is how. Now being on his own and there and ruling over the world,
with operation and suppression and all sorts to try to rule singularly, you see, resulting into certain situations natural out of this operation and suppression, that in the course of the nature itself, Vasudeva gets born after he is such state, not before. पहला तो वही है, क्योंकि वो तो ये अकेला है, मैं हूँ ऐसा करने वाला, तो पहला जन्मता है पीछे प्रति वासुदेव. Then because of the situation demands, and that is how yuge yuge sambhavami happens. Do you follow? It's a natural song. Prati Vasudev is next birth is Vasudev, is that? No, it's the opposite of Prati Vasudeva, and therefore, and the same that has got to get born. Otherwise, the Prati Vasudeva state, the world will be under great operation, suppression, and whole world cannot be like that. He may have his own world, maybe small, but he will make believe for everybody else that mine is the world. That is how it is. सबको मनाएगा भाई क्या हम ही है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सारी ह्यूमैनिटी है वो तो बहुत बड़ी है, तो जो बड़ी है पोर्शन वाली वो नहीं मानेगी, लेकिन मानना पड़ता है उन्हें, उनका प्रभाव जोर में, क्योंकि उनके पास बहुत विद्याएं रहती है, उनके पास साइंस रहा करता है, ऑर्डिनरी नहीं है ना, ये 63 बेस्ट फॉर्म में है ना, बेस्ट फॉर्म में है सब इस विद्या, नोबडी कैन चैलेंज देम. और उसके जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं और सर्वेंट्स भी हैं, वो सभी वो विद्या वाले ही होते हैं, उनको मायावी बोलते हैं. क्या ऐसे बोलते हैं. हमारी नीचे की टर्म में उसको राक्षस वृत्ति वाले बोलते हैं, तामसी वृत्ति वाले बोलते हैं, लेकिन मायावी, उनके पास विद्या है ना, तो सब विद्या से सब कुछ कर सकते हैं. दे कैन चेंज फॉर्म्स, दिस दैट, दे कैन बी अ स्मॉल बर्ड एंड जस्ट गो एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत कर सकते हैं. जिसके पास इतनी है इतनी, बाकी के तो ऐसे नहीं, तो सारा संसार ऐसा है ना. तो ऐसा चलता रहा. तो उसके बाद वो वासुदेव जन्मते. वासुदेव जन्मते तो उसके साथ उनके ब्रदर भी होते हैं. ब्रदर हमेशा बड़े होते हैं, बलराम, और वासुदेव छोटे होते हैं. नियम ही है, ऐसा चलता ही रहता है कुदरत का क्रम. तो ऐसे 9 वासुदेव, 9 बलराम एंड 9 प्रति वासुदेव, टोटल कितना हुआ? तो 63 हो गए और नहीं हुए, बस that's all. Beast forms. So Prati Vasudev also comes in those higher forms? Definitely, they are not ordinary. What do you say? They are the top scientists of the world, which nobody can compete. That is how they are Prati Vasudev. And Vasudev and Prati Vasudev both worship the same deity. बोलो जल्दी, क्या बताया? Vasudev and Prati Vasudev both worship. Same word, deity. Deity is common to them, both of them. But the Prakriti are North South Pole. Prati Vasudev, negativity with positive egoism of owning everything whole, like that. And he is also worshipping. And Vasudev, how can you oppress so many and so many, जिसको सबको सब दुख में रखते हो, क्या है ये धर्म है तुम्हारा? तो कि हाँ मेरा धर्म है. नहीं है, धर्म है, मैं बताता हूँ आपको. तो धर्म के लिए है, तो धर्म के पक्ष में हो जाते हैं. और जो धर्म वाले हैं वो तो बड़ी संख्या है, इसके लिए इसका प्रतिपक्षी बन जाता है. तो कोई अधर्मी है, वो तो मायावी है, सबको बना लुटता है, ऐसा करता है. अधर्म वो तो अधर्म बोलते हैं, लेकिन वो अपने को अपना धर्म ही समझता है. क्यों कि दोनों की पूजा तो एक ही डेटी के है, कॉमन. ये आपको जानते मानते हैं, मालूम नहीं है आपको? मतलब ऐसे जनरली नहीं पता था, लेकिन ये पता है जैसे रावण और राम दोनों शिव के भक्त थे. अरे समझते हो साहब, पक्के समझते हो.
पक्का समझते हो शिव जी, तो शिव जी दोनों के कॉमन रहे। क्यों कि शिव जी बोले हैं, क्या बोलो ना सब, तो बोले का तो सबको मानेंगे। क्योंकि जो मानने वाले उनको उनका बनाना ही है, और बोले तो सबके बन जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ है ना, सब ऐसा है। क्या बोलते हो आप? मजा है जीवन में। लेकिन दादा भगवान ने मजा करवाई इसलिए, नहीं तो हम भी ऐसे ही चक्राव में थे सब। समझ में आया? तो 63 फ्रॉम ये बेस्ट है। समझ में आया? एक होता है जब चक्रवर्ती होते हैं तब सिंगुलर होते हैं, और उसी टाइम तीर्थंकर होते नहीं होते कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन चक्रवर्ती धर्म के पक्ष में होते हैं। एक्सेप्शन हो सकता है कि इसी पुण्य से चक्रवर्ती पद मिले, लेकिन वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो उनका रिजल्ट भी सफरिंग इतना ही हार्श आता है, क्योंकि वो सब टॉप पर है ना, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल बॉटम में जाना पड़ता है। ऐसे होते, बट बाय एंड लार्ज जनरली चक्रवर्तियों की पुण्य इसी प्रकार की होती हैं कि जो उसी जन्म में छुटकारा पावे या उससे उच्च प्रकार के देव होवे, और वहाँ से पीछे आके तीर्थंकर को मिलके और ज्ञानी को मिलके किसी को छुटकारा पा देते हैं। ज़्यादा से सबसे अच्छी पुण्य होती है। समझे? सेम पोजिशन विथ द 27 ऑल्सो, सेम वेरी हाई पीपल amongst such a human mass, उसकी सम टोटल इगोइज्म की, मॉलिकुलर इगोइज्म की सब फाइनेस्ट मॉलिकुलर की सब सम टोटल करके उसमें से एक शरीर बनना है, तो कैसी होगी वो? सबको तो ऐसी बात है। पॉजिटिविटी वाले को उसको चलानी होगी, उसके वाले को उसकी होगी, सभी को है। समझ में आए ना? और यहाँ एक सिद्धांत बना रहता है। क्या? सारा सोसाइटी में, सभी टाइम्स में, एक्सेप्ट सतयुग। तो जिसको इंडिपेंडेंस की बहुत मजा है, उसको सतयुग में जन्म के विचार करना चाहिए। लेकिन उस प्रकार की उनके पास एक्यूमुलेशन होनी पड़ेगी। इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी। जानते नहीं क्या करे, वो तो अपने जान चलते ही रहते हैं बस। क्या बोल समझे? तो ये टाइम साइकिल ये चीज है। वो द्वापर में दूसरे ही सर्वप्रथम वासुदेव ये माहिर भगवान हुए, और उन्हीं तरफ से ये सारा जो वेद है वो ऋषभदेव भगवान से उन्होंने भरत चक्रवर्ती के सन के नाते वो साधु बन के भगवान के पास थे, लेकिन बाकी के भगवान के सन्स थे 100, उसमें से 98 और पीछे 99 ऑल्सो आ गए, और दोनों डॉटर्स दोनों साधु और साध्वी हो बन गए थे। क्योंकि वो सभी को दृष्टांत के लिए वो हमें घर से ही चैरिटी करते हैं, और चैरिटी सबके लिए करते हैं। तो अपने लड़के का भोग नहीं देते दिलवाते, लड़कियों को ऐसा भोग नहीं दिलवाते, चैरिटी करना पड़ता है। और लड़कियां भी इतनी ऐसी है कि राजी खुशी से दान में दी जाती हैं खुद भगवान के चरणों में। हम क्या दान दे? उद्धार करने वाले उनको दान देना, वो दान दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं? कैसे? तो कि दान दे के। कौन सा दान? अभय दान। समझ में आया कुछ? तो उनको तो मेरे लड़के ऐसा है ही नहीं, मेरी लड़कियां हैं ही नहीं, वो तो भगवान स्वरूप मुक्त हो गए थे, तो उनको भी छुड़वाए। देखो कितनी आइडिया, सो सच्चे क्लाइमैक्स स्थिति, बहुत अच्छी। तो ऐसी परिस्थिति में जो भरत के पुत्र थे और इसी साधु के समागम में थे, लेकिन थोड़े से अलग पड़ गए, और सर्वप्रथम जो सभी सफ़ेद कपड़े पहनते थे और थोड़े उनके तप और फिनांस थोड़े स्ट्रांग थे, जो उनके पसंद नहीं रहे, बोलते कि
जरा कठिन है। ये दादाजी है और ये सब है हमारे काका लोग, और फूफी, 2 फूफी। साधु तो बोल नहीं सकते, लेकिन नहीं समझ में उनके व्यवहार तो साधु हो गया, तो उनके लिए तो हमारी व्यवहार की थी ना। अभी महाराज साहब बोलते हैं ना, ये हमारे के व्यवहार के पिताजी है। अभी व्यवहार नहीं रहा, नाता नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं ना, और हमें भी मान देना पड़ता है, इसी बात है। तो मैं थोड़ा सा दूर रहूं, लेकिन भगवान को सुनूं जरूर। बड़ी अच्छी लगती है उनकी वाणी, तो सुनते रहे, अलग रहे ही, और अलग रहते हैं तो यहाँ थोड़ा फेरफार होना है, तो कपड़े में, रंग में फेरफार कर दिया, कलर में, समझ में आया? तो लोग सफ़ेद पहनते थे, कलर में फेरफार करना है, नहीं तो मजे ये जाएंगे, तो उसने भगवा कर दिया, क्या, केसरी। ये बात बन गई। और भगवान बोलते हैं नहीं, ये ऐसा तैसा पानी नहीं पीते, लेकिन उस नदी का फर्स्ट क्लास ताज़ा पानी पियो, फल खाओ, परफेक्ट वेजिटेरियन सब कुछ, लेकिन इसे हुए। और वो थे तब भगवान के सामने, और जब बीमार हुए, मालूम पड़ा कि इन लोगों तो आपस में, ये लोग बाकी वाले हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर हमें तो, मैं तो निकल गया और अलग पड़ गया, तो मेरे को कौन करने आवे? तो बिना बीमार की परिस्थिति में समझे तो कोई नहीं है, तो समझे तो परिस्थिति अच्छी नहीं है। कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि किसी की मदद की ज़रूरत, क्या करूं मैं, और साधु बन गया, अभी क्या करूं, मेरा कोई नहीं रहा। तो उसको लगा कि कोई एक, मुझे भी ये सब साथ में है ना ग्रुप, ऐसा मेरे साथ कोई एक भी रहे तो बड़ा अच्छा है। तो उसमें से ही किसी को समझा के बना दिया और उसको शिष्य बना दिया। चल आ जा बिला बेटा, हम दोनों साथ में रहे, आ जा चल बेटा। उसका बना दिया, उसको चिल्ला बना दिया, और उसको मिला। वो तो मिल सकता है हमेशा, समाज है, सबको सब कुछ मिल सकता है, जैसे कि जिसकी जरूरत। वो तो नियम ही है ना, नहीं तो कुदरत कैसी कहलाएंगी, बोलो ना साहब। बैलेंस ये सब क्या चल रहा है? तो ये बनता है। तो सर्वप्रथम उसका शिष्य बना वो कपिल मुनि, शिष्य कपिल, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफशूट ऑफ फ्रॉम द वेदांत इन ए डिफरेंट वे। तो वहाँ से थोड़ा चालू हुआ, लेकिन साहब ने जो बताया वो तो बहुत लेट है, बहुत लेट है, बहुत लेट है, बहुत लेट है। कृष्ण भगवान के समय में नहीं था। लो साहब, ये तो पीछे वाला है, बहुत पीछे वाला। और मानते हैं हमारे वेद अलग है, कुछ नहीं साहब, कुछ जानते ही नहीं। अभी समझ में आया? अगर सही वेद समझना हो तो ज्ञानी के पास है, और सही ऋषभदेव का पूरा जो जैनों मानते हैं हम पूरे हैं, वो समझना हो तो ज्ञानी के पास है। क्यों कि ज्ञानी वो दूसरे किसी के पक्ष में झगड़े से है ही नहीं। सभी झगड़े से मुक्त हुए तभी अभी उसकी परिस्थिति होती है, और ऐसा उसका बिना झगड़ा वाला एक एक्सपीरियंस होता है। बिना झगड़ा समझ में आता है किसके साथ का? अपने अंदर का। अपने अंदर का क्या बात करते हो आप? वहाँ के सीख के आए हो नक्की जरूर, जरूर सीख के आए, नहीं तो ऐसे नहीं बताते। झगड़ा तो बाहर से ही बताते हैं, उसके साथ सच्ची बात है। साथ के साथ तो कोई झगड़ा जो है वो झगड़ा निपटाने के लिए उसके साथ कोई झगड़ता नहीं। सचमुच उसके साथ झगड़ा निपटाने के लिए उसके साथ झगड़े में रहना ही चाहिए, और उसके साथ झगड़े में रहे तो झगड़ा निपटने का उसको रास्ता ही मिलेगा, और झगड़ा भी निपटा जाएगा, और तभी अनुभव होता है। और लोगों को अनुभव चाहिए, क्या करें अभी आराम से, लो खा लो, हमको तैयार दो, हम खा जाएंगे। सब क्या करें, ऐसा चाहिए हमें तो हम खा लेंगे। बोलो ना भरत जी, खा जाएंगे, पच गया
પુષ્પાબેન બોલતે નહીં કેમ ના એવું નહીં हमें क्यों ऐसा बोलने की जरूर है बोलनी जरूर है हमें तो बात अच्छी तरह से समझो कि जिस किसी ढंग से इतना ऐसा विज्ञान मिलने के बाद कोई रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो जाए और माने कि हम शुद्ध हो गए हैं। ऐसा हो सकता है सर? ऐसा कुछ शब्द बताते हैं लोग, पानी शुद्धि करने वाले और सबको देते एक देखो स्वच्छ जल है प्योर, ऐसे करते सर बोलो साइंटिस्ट। तो यहाँ प्लांट आते हैं इंडिया में मिलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के पानी शुद्धिकरण वो तो यहाँ से गए न, इंडिया तो सब कुछ ढूंढ निकाल सकता है लेकिन अभी दिवाला निकल गया इसीलिए क्योंकि अपनी सारी एसेट उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। तो क्या करें, कोई एसेट एक्सपोर्ट करता है बताओ साहब? नहीं, एसेट बनाने के लिए जो निकम्मी चीज वो एक्सपोर्ट करनी होती है तो काम वाली चीज एक्सपोर्ट कर दी साहब। वो समझे नहीं कि हमारी एसेट है और ऐसे ही समझे कि तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही है, उसको जाने दो बाहर। और रावण को जलाया तो क्या बने पीछे? रावण को जलाओ तो जो साइंटिस्ट है उसको जलाओ तो साइंस कहां से रहे? विद्या तो उसके पास है, कहां चले जाएगी? ऐसी हुई। सारा भारत ऐसा करता है, दिल्ली भी ऐसे करती है। दिल्ली में पहले करते हैं नहीं तो पार्लियामेंट वाले खुश किससे हो गए, नारा लगाने वाले करो, क्योंकि सब लोग हैं ना, लोग को खुश करना है, बस खत्म हो गई बात। मजा है नहीं? ये बात है। लेकिन युगे युगे संभवामी ऐसी परिस्थिति में द्वापर पूरा हो गया, एंड में महावीर भगवान हुए और द्वापर के 1-2-3 महीने सरखे समय बाकी था तब निर्वाण हुआ और ये सब परिस्थिति आने वाली थी। उनकी एब्सोल्यूटनेस में दिखा था और उसको प्रश्न किया गया कि भगवान जब देव की वाणी और समझ से कि एक ग्रह ऐसा आ रहा है कि उसकी इतनी पावर है, जैसा धूमकेतु वगैरह बोलते हैं ना, तो इतनी पावर नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव है, तो वो ग्रह की असर ये भारत पर ज़्यादा से होने वाली है। सभी जगह होगी लेकिन उसकी ज़्यादा असर भारत पर होगी। और भारत जो धर्म प्रिय देश है, वहाँ उसको बहुत मार खा जाएगा और धर्म पर सब अंधेला छा जाएगा। तो बोलते हैं ये अगर आप आयुष्य थोड़ा बढ़ा दो और इतना समय निकल जाए तो उस नहीं है समझ, देखो कुछ नहीं बन पाता। वो होने ही वाले हैं और धर्म पर सब अंधकार का अच्छा हो जाने वाला है और वो 2500 साल उसकी स्थिति है, 2500 ईयर्स, और उसके बाद वो निकल जाएगा और धर्म का उत्कर्ष होता होगा। इसी देखो ये है। और वेद वाले ज्योतिष का उसके पास ज्ञान है, वो भी बोलते तो हैं लेकिन उनकी भाषा में बात करते हैं। उनकी सबकी भाषा तो होती है ना, भाषा सबकी होती है कि भाषा एक ही होनी है? सबकी होती है भाषा। हाँ, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी समस्या हो क्या कि नहीं? बस हम अपनी अपनी भाषा में बात कर सकते जरूर। पुष्पाबेन ऐसा है, सो क्यों हंसते हैं आप? नहीं कर सकते? कर सकते तो लगे झूठी हुए क्या करें हम? ऐसी बात है। तो मैं तो बताया ये हुआ और 2500 साल तो हो गए, 2600 होने ही आई, 2600 ईयर्स ऑफ दी बर्थ। तो 2500 में से तो 2540 के 45 वट एवर रहते हैं, इतना तो हो गई है, निकल गई है। तो ये होने के ये जो होना है तो शास्त्र में लिखा था जब 18वें तीर्थंकर थे तब सब कुंथुना, तो उनके समय में बताया हुआ है कि ये द्वापर युग पूरे होते ही कलयुग जो है वो आ रहा है, जब धर्म का उत्कर्ष होने वाला है और फिर भी धर्म का साम्राज्य चलने वाला है। ऐसा कलयुग में अंधेले में बीच वाला समय आएगा तहाँ तक
जब क्लाइमेक्स आने की बिगिनिंग होगी और क्लाइमेक्स पूरा हो जाएगा, उसमें तो धर्म नहीं रहेगा, लेकिन क्लाइमेक्स में बिगिनिंग है होने, वहां तक तो चलेगा। कलयुग शुरू हुआ लेकिन यहाँ सेंटर तक, तो वहाँ ये थोड़ा सा गाल आया है और निकल के ये होने वाला है। तो उसके लिए कुछ निमित्त तो चाहिए। 63 तो हो गए, अभी क्या करो, कौन आवे? तो कृष्ण भगवान ने बताया कि युगे युगे संभवामि, क्या बताया? और वहां शास्त्र में बता दिया कि एक ऐसा एक ज्ञानावतार होने वाला है। क्या बताया? जो अक्रम ज्ञानावतार के ढंग से समझा जाएगा और उनसे धर्म की उन्नति होगी। क्या बताया? अक्रम ज्ञानावतार, जो क्रम के मुताबिक, क्रोनोलॉजी के मुताबिक जो सब व्यवस्था थी वो सब यहाँ अपसेट हो गई। सारी क्रोनोलॉजी अपसेट हो गई और ऐसे डिस्टर्ब टाइम में एक क्रोनोलॉजी क्या करने लगे? कोट करने लगा। तो अच्छी बात है ना, कोट करे तो। हमारे पास नहीं हो तो क्या करें हम? सब बताओ ना, क्या बोलते नहीं आप तो? हमारी जो थी सब अच्छे बोलते, बड़े थिंकर है, बड़े बुद्धिशाली है, लेकिन गुरुजीएफ इतना करता है क्या? देखो दादा भगवान बोला, लेकिन गुरुजीएफ सरकारी है ना, करते हैं। क्या बोलते हो? कोट करते हैं और कोट ऊपर हम व्याख्या भी करते हैं। व्याख्या करते हैं। क्या करें अभी? परिस्थिति, इसमें किसी व्यक्ति और ये बात ही नहीं आती है, लेकिन परिस्थिति, लेकिन उसमें ये अक्रम ज्ञान अवतार, ये सबसे बड़े, ये तो सबको पसंद हुए इसलिए ऐसे हैं, लेकिन दरअसल उसका दिखावपना तो बड़ा अच्छा था कि सबको लाभ तो होने वाला है, लेकिन ऐसी मानी मनाई हुई दुनिया में और चक्राव में आए गए हुए सभी लोगों को, जो अच्छे बोले वाले हैं, हृदय की सच्ची भावना वाले हैं, वो उसमें से नहीं, बाकी नहीं रह जावे। क्या बताया? उनको वो लोग चकमा मत दे और उनकी हिजक मत कर ले। उनको तो प्राप्त होने ही वाला नहीं, हिजक करके तो उसका वो मजा चलाएगा, लेकिन अच्छे लोग को चकमा मत दे। तो ऐसे इस ढंग से दूसरे विष में आए, जो 63 बेस्ट फॉर्म थे वो इसमें नहीं आए। अभी क्या करिए? बताओ क्या करें? आप लोगों ने पहचान लिया? आप लोगों ने पहचान लिया? मीना बहन पहचान लिया आपने? नहीं, आपने हमको नहीं साहब, मैं अक्रम ज्ञानावतार की बात करता हूँ, दादा भगवान की बात करता हूँ। बोलो तो क्या? तो काली टोपी में आ गए तो किसको मालूम पड़े? आओ चलो जाओ, फर्स्ट क्लास शर्ट, गोल्डन बटन्स, बूट, पॉलिश वाले चकते, किसको भी जिससे हैबिचुएटेड लोग हैं वो चकमा खा जाएंगे। ऐसा बात सच्ची है? हाँ, सच्ची बात है। सामने रहते 40 साल से बहुत अच्छे अंबालाल भाई है, लेकिन तो गए रास्ते। फिर भी वहां है, कहाँ है, सभी जगह है, कहाँ भी बोलो। और उनकी जो प्रेजेंस थी तब वो अच्छी तरह से जानते थे और बड़े पक्के थे। इसीलिए कौन से पक्के? वो 24 थे ने, उनके पक्ष वाले थे। क्या? लेकिन 24 तो अपने अपने समय में हो गए, अपने अपने समय में अपने समय का काम करते गए, लेकिन ये समय के सभी समय से ये छटक गए हैं, तो उनका काम कौन करेगा? तो सारा आपका सब लोगों का सब ये माल लेके आए हैं लोग। तो वो वहाँ तो कोई किसी लोगों ने
उन्होंने एडमिशन ही दिया नहीं कि उनके पास माल नहीं था, और जो माल था अपना हिस्सा था तो साथ में लेते लेते फिरते गए, लेकिन सही माल थोड़ा सा था और नहीं सही माल तो बड़ा था। क्या करें, लेकिन सही माल ज़रूर है, तो कहाँ करे, क्या करे उसको। तो वो कैसे काम बनाएगा? तो सारा 24 का हम साथ में सबका है, हम सारे 24 तीर्थंकर का सहारा इकट्ठे करो, तब उसका एक अर्क निकले, तो ऐसा अक्रम ज्ञान अवतार प्रकट होगा। क्या बताया? इट इज नॉट ए बिग डील, बिग थिंग। तो इसीलिए शास्त्र में बताया कि ऐसा आश्चर्य घटने वाला है। आश्चर्य महीना जो कहे किसी ने सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, और सभी को आसानी से महसूस हुए, और कोई माने नहीं ऐसा, तभी तो आश्चर्य बताएगा। समझे ना? आप बात दूसरे को करो, कौन मानेगा आपकी? मानेगा कोई? हाँ? हाँ? आपको सही ढंग से मानने के लिए आपको पप्पा जी ने, डैडी देखो आप जरा जाना करना और मुझे बताना, तो मुझे लगता तो है लेकिन मुझे पक्का कर लेना। लेकिन बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि उनको ऐसे पप्पा मम्मी मिले हैं। उनको मैंने ऐसा नहीं बताया, उनको ऐसा नहीं बताया। नहीं तो मैं जरा, ये तो अभी थोड़ा लाइट होने दो, थोड़ा लाइट होने दो, हरकत क्या है, तुम ऐसे इतने अच्छे हो तो थोड़ा नहीं तो डॉक्टरों को तो इतनी ऐसी बात नहीं कर पाते हम। कि वैसा ही देखो तो इन रिलेटिव वर्ल्ड डॉक्टर्स आर ऑफ हाई लेवल नॉर्मली, engineers are not of that high level. No. Doctors normally everywhere, तुम देखो ना। और एक तो कृष्ण भगवान ने बताया, वो वहीं था सारा। और ये कलयुग का तो सभी लोग जानते हैं कि जो 3 लोग अगर आज चलने वाला है, वो 3 लोग सारा समाज पर राज चलाएंगे, नहीं साहब? तो डॉक्टरों को उन्होंने स्थान दिया, तो पीछे क्या करें? एक बाजू धर्म और दूसरी बाजू और स्थान दिया। क्यों? कि रोग वाला ही काल है, तो रोग वाला काल में सबको का, तो डॉक्टर तो सर्वोपरि हो ही रहेंगे ना, क्या करें? रोग जावे तो बड़ा अच्छा है, तो मजा आती है। तो इसी बात है साहब, बोलो अभी समझ में आ गया पूरा? ये अक्रम ज्ञान अवतार, एक कलयुग 2500 आज 40 के जो वर्ष हुए इतने तो नपास हो गए हैं, और सेंटर पॉइंट आने के तक क्लाइमेक्स की बिगिनिंग होनी है, वहाँ तक 21,000 साल है, और क्लाइमेक्स की बिगिनिंग होगी और क्लाइमेक्स पूरा होगा कलयुग का, वहाँ तक दूसरे 21,000 साल है। तो वहाँ डार्कनेस हो जाएगी, और यहाँ 9 o'clock हो जाएंगे। कौन से? विंटर के। विंटर के ही होना है ना। और जब विंटर के 8 बजते हैं तो दुकान थोड़ा धंधा ज़्यादा करने के लिए रखते हैं, लेकिन डर लगता है तो भाई अभी जल्दी बंद करो, 1 घंटा बंद करो जल्दी। दुकान क्यों बंद करनी पड़ती है भाई, क्या तकलीफ है? तो नहीं, अरे कोई एक आध ग्राहक आ जावे तो डायमंड की दुकान है और कलश मिल जाए तो डायमंड वाला खले तो उसका ही सब हो जाए पुक्का। क्योंकि वो डायमंड लेने वाले तब नहीं आएंगे, वो तो दिन में आएंगे कि नहीं? आप कब जाएंगे? दिन में जाएंगे डायमंड लेने के लिए कि रात को? अरे वाह, तो अपने दिन में ढूंढने वाले अब हम लोग सब। ऐसे साहब ने बताया, आपने बताया ना साहब, साहब ने बताया ना, दिन में ढूंढने वाले थे, ऐसे गुमराह थे कि नहीं मिला, छटक गए, तो उसके लिए छटक का रास्ता निकल गया। डायमंड दिन में ढूंढने वाले थे हम लोग, और जिसको रात को ढूंढने वाले अलग प्रकार के होते हैं। ऐसी बात है साहब। बस हो गई बात, प्रसाद आ गया।
अभी बहुत लंबी बात, और मुझे तो कुछ जरूर नहीं है लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, समझ में है? तो पूरी है, बीजी थोड़ी आगे करेंगे पीछे। एक 5 मिनट में बता देता हूँ कि अभी जो वो डार्कनेस पीरियड चालू हुआ, डार्क पीरियड जिसको बोलते हैं, और वहाँ जहाँ प्रकाश की ज़रूर वो समझते हैं, लेकिन वो डार्क ऐसा नहीं है, वो प्रकाश वाला ही है, सनसेट है। सनसेट में डार्कनेस नहीं होती, लेकिन सनसेट से मिडनाइट के बीच में से डार्कनेस होने की शुरू होती है, वो इतना बीतने का वक्त है। और हम तो सनसेट के नज़दीक है, अजवारे वक्त में काम बन गया और धर्म तो चलने ही वाला है। ये क्रम विज्ञान है, वो तो साइंस है। साइंस में गॉसिप नहीं चल सकता। इवन एरिथमेटिक आप सम का सॉल्यूशन ढूंढो तो गॉसिप से नहीं ढूंढ पाते। अगर आपको 144 का आंसर चाहिए तो यू हैव टू पुट द 2 sums or no, right? And those 2 sums can be how? Such that they have to result into 144. And what can they say? 13 into 12? No. 11 into this? No. 12 into this? ऐसे करते रहते हैं सब, तो उसमें घूमते रहते हैं पीछे। अरिथमेटिक तो सिंपल है सर, अपने स्कूल में सिखाते, क्यों ऐसा क्यों हो गया साहब? बताइए ना साहब। तो बच्चा बता दे, अरे साहब आप इतने बड़े हो के ऐसा क्या करते हो? तो 12 करो, जल्दी आ जाएगा। अरे 12 144 आ जाएगा। तो आया सही। और 1 नंबर का विद्यार्थी होगा ना वेक्टर वाला, वो बोलता है 144 करो ना, देखो। तो क्या करना है? उनको वेक्टर चाहिए ना। आपको वेक्टर चाहिए? This is not subject to gossip. Answer can never be subject to gossip. End cannot be the subject of gossip and gossiping. And yet, आप तो निकल गए। नहीं अभी लगता है कि नहीं? पक्का बोलो। जरूर? Now be useful to others. And you. How? This Dr. Vinod, smallest of the small, is for everybody because he is for himself as one, and therefore for everybody as all, without exception. Unless he is for himself, how can it be for others as all? Unless he obliges himself, how can he oblige others? You see? And out of habitual practices, if he goes on obliging that way, what will be the situation? His own home will be empty. क्योंकि हमें हैबिट पड़ गई है कि दुखी देख के इसको दो, उसको दो, उसको दो। घर वाली बोलती है, अरे भाई क्या करते हो, हमारा अपना तो घर तो संभालो। अरे भाई दो क्या है, सब देखो ना अपने पर तो है, कहाँ जाएगा। तो ऐसा करते करते साधु आए वहाँ तो दो, और कम होता गया। तो जब कम महसूस पाई गई तो घर के छोकरे भी चिल्लाने लगे। फिर भी उनका तो चलता था, तो क्या करे, तो देते ही गए। तो પછી रहा नहीं, तो रहा तो क्या करे, छोटा है। तो जैसा करके जो आटा है ना घंटी में, वो ऐसा करके उसको करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि बाकी का जो डला हुआ था सबको दे दिया। अरे क्या परिस्थिति क्योंकि हैबिट थी ना, और सभी लोग ऐसे थे, सभी ऐसे सिखाते हैं। क्या करे सर, सभी लोग में हम रहते हैं तो हम क्या कर पाते? बोलो पुष्पा, लोग ऐसे बोलते हैं कि हम बोले ऐसा जियो। ये तो इतने इस ढंग से तो जमाना बड़ा अच्छा है। ये तो पहले का जमाना था, मार के भी सिखाएंगे। क्योंकि अभी तो अच्छा है, डेमोक्रेसी का जमाना है। कितनी अच्छी धर्म कर सकते हैं।
ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ.